It's called series. Right. So in series, the capacitance behavior is exactly similar to that of parallel of resistors. In series, formula was 1 by C Q, that is 1 by C1 plus 1 by C2 and so on. And in parallel, it is normally added like the series of resistors. So we did some cases in which how to decide whether it is a series combination or parallel combination. Always start with that branch which does not have any other further branching. And then we did started some special circuits which cannot be directly solved on the basis of series and parallel combination. And the first one was circuits having plane of symmetry. प्लेन ऑफ सिमेट्री के भी बहुत सारे केसेस होते हैं. First we did was vertical perpendicular plane of symmetry. Right. First was symmetry, in which plane of symmetry should be perpendicularly passing through the midpoint. First case, first case we did was if there is any node or any junction lying on plane of symmetry, that junction can be opened and shifted along the plane. So if it is A and B, this point at the junction, if both the side circuit is perfectly symmetrical, then this junction can be opened and shifted along the plane. This will not change the Sir, circuit. The overall excuse me, sir. बोलो बेटा. आपकी आवाज कट रही है थोड़ी मेरे एंड से. यस सर लैग भी है थोड़ा सा. So we have to identify, because we cannot solve this by a normal series or parallel combination formula. So first case we did was when there is a plane of symmetry. Plane of symmetry is vertical and always passing through the midpoint across the battery. Battery is to be connected between A and B, और इसके ठीक midpoint से अगर कोई plane pass होता है, that perpendicular plane passes through the midpoint. Any junction lying on plane of symmetry can be opened and shifted along the plane. इसको हम यहाँ से open करके plane की direction में shift, perpendicular plane की direction में shift कर सकते हैं. Now we can solve this circuit. It is exactly same as the previous circuit. Right? हमने exactly Yes, sir. same question किया था last class में. Yes. Second example is that it might be a whole capacitor lying on plane of symmetry. If there is a whole capacitor, this is second example of the vertical plane of symmetry only. If suppose in any circuit, whole capacitor as in the both the terminals of a capacitor lying on plane of symmetry. In that case, plane of symmetry का logic क्या था? Every point lying on plane of symmetry is at same potential. So उसके बीच में जो भी connected होगा उसके cross potential difference will be zero. If potential difference is zero, means it will not draw any charge or any current from the circuit. Potential difference zero means no charge there is to the battery. Each capacitor is supposed C. Now there is a branch plane which is passing perpendicular to the midpoint. On this
plane of symmetry, there are two capacitor lying. Across this capacitor potential difference will be zero. Therefore, no charge will be stored in these capacitors, and these capacitors can be removed from the circuit. सर अगर सिर्फ एक होता तो वो भी हट जाता, वो क्यों हटता सर अगर एक ही है तो? उसके भी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। ये सारे पॉइंट से पोटेंशियल पे आ गए ना, एक्स वाई एंड जेड, ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक मतलब एक कैपेसिटर होता है पूरा, ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओ अच्छा, यस सर, कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, है ना? दैट सेम पोटेंशियल, राइट? Potential difference zero. Potential difference zero means no charge. No charge means that can be removed. Capacitors plane lying on plane of symmetry can be removed. Right, so ये C दोनों हट जाएंगे. Now when you remove these two capacitors, that becomes simplified. Second example for vertical plane of symmetry. If you remove, आप दूसरा circuit बना लेना. We can remove these two capacitors क्योंकि इसके क्रॉस कोई potential difference नहीं है. Potential difference नहीं है, so they will not have any charge. We can assume it to be not present in the circuit. Now these CCC identical capacitors in series, so it becomes C by 4. नीचे वाले ब्रांच का C by 4 और बीच वाले का C by 2. C by 4, C by 4 and C by 2, these are in parallel. So capacitance between A and B will become To C. see, sir. वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री के पहला केस था जब उस सिमेट्री में जंक्शन कोई जंक्शन लाई करे या नोड लाई करे. Second, when there is any capacitor lying on the plane of symmetry, it can be removed from the circuit completely. अगर कोई जंक्शन लाई करता है तो हम जंक्शन को ओपन करके शिफ्ट कर देते हैं along the plane of symmetry. सर मुझे एक डाउट है. बोलो. सर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी और उससे बना सकते हैं, जैसे A to B वाले में बना सकते हैं क्या? नहीं बेटा, ये लास्ट क्लास में लिखा भी था हमने शायद. दिस फर्स्ट केस वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है plane of symmetry must be passing perpendicularly through the midpoint across battery. Vertical plane Okay. of symmetry का मतलब must be passing through मिड पॉइंट A B क्या है? AB के midpoint. ओके. Must be passing perpendicularly through सर the कोई midpoint. सर कोई स्पेशल केस तो नहीं है ना जिसमें कि XYZ जो मिड पॉइंट प्लेन ऑफ सिमेट्री पे रहता है वो आएंगे रेजिस्टर वो है? सेकंड केस. अभी हमने फर्स्ट केस किया ना plane of symmetry. ओके. Through midpoint across AB. AB मतलब across battery terminals. जिन टर्मिनल्स के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है उसके ठीक मिड पॉइंट से परपेंडिकुलरली पास होता है. देन दैट दिस वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री कांसेप्ट इज यूज्ड. और इसका रीजन ये था बिकॉज दिस प्लेन इज मिडवे थ्रू द सर्किट, सो वर्क डन इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. Right, so next is
Find the equivalent capacitance between A and B in the following circuit. Assuming each capacitance to be C. इसमें जरूरी नहीं सारे कैपेसिटेंस सेम ही हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले इक्वल होने चाहिए. क्या करेंगे इसमें? इसमें दोनों के साथ आएंगे. देयर इज अ जंक्शन एज वेल एज वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री बोथ. जंक्शन भी और उसके ऊपर रेजिस्टर कैपेसिटर्स भी लाई कर रहे हैं. ऑन दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री टू कैपेसिटर लाइज. उन दोनों कैपेसिटर को हम हटा देंगे. देयर आर टू जंक्शन. इस जंक्शन को ऊपर की तरफ और नीचे वाले जंक्शन को नीचे की तरफ ओपन कर लेंगे. Any plane of symmetry circuit, junction open and shifted along the plane, and complete capacitor lying on it will be removed and from this circuit. Yes, that will be the effective circuit. The answer? थोड़ा समझ आ रहा है परिधि? श्रेया? Yes, sir. What is the answer? 2 minutes. कितना? मैं कहता 2 minutes रुक जाओ प्लीज. मेरा वॉइस क्लियर नहीं है, जोर से बोलो. Sir, I said could you please wait for 2 minutes. अभी कर रहा हूँ. अच्छा. ओ. किसने बोला ये? सुशांत? सर आंसर 7C/6 है क्या? 7C/6, C/2, C/2, C/3 plus C/2 plus C/3. ठीक है. हाँ सर, यही आया. Right. 7C/6. Yes sir, 7C/6. Ashutosh, 7C/6. Ashutosh? Yes, sir. क्या है बेटा आंसर तुम्हारा? 7C/6? Yes, sir. किया है कि बस ऐसे ही असर करना? Second is horizontal plane of symmetry. Plane of symmetry के अंदर के केसेस है. Next is horizontal plane of symmetry. Horizontal plane of symmetry दोनों भी हो सकती है सर्किट में एक साथ, और इसी को हम दूसरा मेथड बोलते हैं. ये सेकंड स्पेशल सर्किट भी आप मान सकते हो. दिस इज द सेकंड स्पेशल सर्किट. इसको हम फोल्डिंग सर्किट भी बोलते हैं, फोल्डिंग मेथड भी बोलते हैं. So in some circuit when there is a horizontal plane of symmetry, find the capacitance between A and B, assuming each capacitor to be of C.
यस, इसमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है वैसे, बट वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो उस पे कोई जंक्शन है और ना ही उस पे कोई कैपेसिटर लाई कर रहा है। देयर इज अ वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री आल्सो, but this plane of symmetry won't help in simplifying the circuit because this plane of symmetry does not have any junction on it, and it also does not have any capacitor lying on it. So पहले तो हम बैटरी लगा लेते हैं थोड़ा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए. Battery should be connected between point A and B. Now, in this case, there is a horizontal plane of symmetry. Horizontal plane of symmetry मतलब this plane A to B, which is along the plane. This is also a plane of symmetry. इसके ऊपर और नीचे के सर्किट सेम है. ऊपर और नीचे के सर्किट की वैल्यू भी सेम है कैपेसिटर्स की. Yes, sir. अब ये इक्विपोटेंशियल तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली, बिकॉज A is at higher potential, B is at lower potential. So, जो पिछले वाले केस में कॉन्सेप्ट था वो यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा. बट इन दिस केस अगर हम इसको एक मिरर इमेज, इसको हम एक मिरर एज्यूम कर ले, इफ वी कंसीडर दिस प्लेन एज अ मिरर, उसके जो मिरर इमेजेस वाले पॉइंट है, लाइक दिस पॉइंट इफ सपोज कंसीडर टू बी 1, इसका जो मिरर इमेज होगा, assuming that is an object, those will be at same potential. So दोनों 1 1 वाले पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे. Similarly, this point 2 and 2 will be at same potential. So if there is a horizontal plane of symmetry, the mirror images of about horizontal plane, they are or they those will be at same potential. Again, अगर horizontal plane of symmetry है बैटरी के parallel, not perpendicular to the parallel, this time it is parallel to the battery along the battery terminal. इसको हम एक मिरर एज्यूम कर ले, तो जो मिरर इमेज वाले पॉइंट्स हैं आपस में, पेयर ऑफ मिरर इमेजेस, दोज विल बी एट सेम पोटेंशियल. और जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होता है उनको सर्किट में हम सेम पॉइंट ही एज्यूम कर सकते हैं. तो इसलिए ऊपर वाले पॉइंट को भी 1 और नीचे वाले पॉइंट को भी 1 एज्यूम कर सकते हैं. लाइकवाइज द अदर साइड 2 and 2. सो along the battery terminals, the mirror image points about horizontal plane of symmetry are at same potential. ये जो फोल्डिंग है इसके दो तरीके हैं. उसके बाद एक तो नंबरिंग वाला मेथड होता है कि हम इनकी नंबरिंग करें. नंबरिंग करें मतलब जैसे ऊपर कुछ पॉइंट है, नीचे पॉइंट है, उसको सेम नंबर करके सर्किट ड्रॉ करें, या हम इसको यहीं से बीच से फोल्ड कर सकते हैं. The circuit can be folded in between. Circuit can be folded and then connected together. Circuit को हम इसी symmetry से about horizontal plane of symmetry, circuit can be folded and connected end to end. ये 1 1 वाले end को आपस में connect कर देंगे. So this circuit can be folded about the horizontal plane, about this plane of symmetry. And end points are connected together. कि जो सेम पॉइंट पे पोटेंशियल है उनको हम आपस में कनेक्टेड एज्यूम कर सकते हैं. कैन बी कनेक्टेड टुगेदर. एक तरीका ये है, दूसरा तरीका नंबरिंग वाला होता है. नंबरिंग का मतलब कि हम इन पॉइंट्स को एंड पे मार्क करते हैं ए बी 1 and 2 एंड देन वी ड्रॉ द सर्किट अगेन. तो हम दोनों मेथड एक बार करके देख लेंगे. वी विल सी बोथ द मेथड. कॉन्सेप्ट समझ में आया? हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नॉट एन इक्विपोटेंशियल प्लेन, बट उसके अबाउट जो पॉइंट्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे वो सेम पोटेंशियल पर है. तो जैसे सर्किट को फोल्ड करना है
about this line if we fold this circuit, ऊपर वाला half तो as it is रहेगा, ऊपर वाला half तो as it is रहेगा, means इसके about हम fold कर रहे हैं, this point is A and this point is 1. जब नीचे से fold किया तो ये 1 ऊपर में आ गया, अब इसको आप folding बोलो या इसको numbering method भी बोल सकते हैं. Numbering method का मतलब ये A है, this point is 1. A और 1 के बीच में एक आ गया कैपेसिटर, इसकी नंबरिंग कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 एंड इधर पॉइंट नंबर 4. So if we number this as point 3, तो 1 और 3 के बीच में भी 2 कैपेसिटर आ गए. इसको हमने यहाँ से फोल्ड किया and these points are connected together. Here this will be connected together. 1 और 2 के बीच में एक ऊपर कैपेसिटर है, एक नीचे कैपेसिटर है. 1 और 2 के बीच में 2 कैपेसिटर आ गए फोल्ड होके. ऐसे दूसरी तरफ पॉइंट था 4, 2 और 4 के बीच में 2 फोल्ड होके दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे. और 4 और B के बीच में एक था, 2 और B के बीच में दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे. So between 2 and B also this will be connected. अब इसको आप फोल्डिंग भी बोल सकते हो, इसको आप नंबरिंग मेथड भी बोल सकते हो. नंबरिंग मेथड का मतलब होता है हम उन टर्मिनल्स को नंबर कर लेते हैं सेम नंबर जो दोनों सेम पोटेंशियल पर हो, और फिर हम हर एक कैपेसिटर को चेक करते हैं वो कौन से टर्मिनल्स के बीच में कनेक्टेड है, एंड देन वी ड्रॉ द सर्किट अगेन, राइट. अब ये सर्किट सॉल्वेबल और लग रहा है, पहले थोड़ा मुश्किल सा था, पहले समझ नहीं आ रहा था इसमें. पहले हम किसी भी दो को सीरीज में ले सकते, कोई भी दो सीरीज में नहीं थे, और वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं थी. सो ऑल दीज ब्रांचेस फर्स्ट वी सॉल्व. 2C 2C, ये बन गया 2C, दिस इज 2C, this is 2C. If you simplify this, A और 3 के बीच में C, और उसके ऊपर एक पॉइंट है 1. A और 1 के बीच में 2C, 1 और 3 के बीच में 2C, 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 C, and here it is 2C. So ये 3 सीरीज में, ये 3 सीरीज में, फिर टोटल सीरीज में हो जाएगा. नहीं, कौन सी 3 सीरीज में? सीरीज में नहीं है अभी कोई भी, 3 तो कोई भी नहीं है. सर ऐसे ही तो होता है. कौन सी 3 सीरीज में? ये 2 A सीरीज to में है 3. इसके अलावा. यस सर, 8 to 3. तो ये C और 2C आ गए ना सीरीज में बस. यस सर. तुमने 3 बोला, ऐसे इधर ये सीरीज में. पहले दोनों का सीरीज सॉल्व करोगे, फिर ऊपर वाले 2C के साथ पैरेलल में आएगा, और फिर बीच वाले 2C के साथ सीरीज में. 2C and C in series, C1 C2 divided by C1 plus C2 वाले मेथड से 2C by 3, और इधर भी आ गया 2C by 3. एक मिनट सर, मैं कह रहा था 2C ऊपर वाला भी है और 1 वाला भी होना चाहिए शायद सीरीज में. नहीं, वो तो अलग ब्रांच है, वो 1 और 2 के बीच में है. ये एक ही ब्रांच है ना, A to 1, इसलिए Yes, सीरीज sir. में आ गए. इसके आगे जाओगे तो First. बीच में ब्रांचिंग आ जाएगी, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते. हम केवल उतने ही ब्रांच को सीरीज में कंसीडर करते हैं जिसमें और कोई साइड ब्रांच ना हो.
C and 2C in series that become 2C by 3 और ये 2C by 3 ऊपर वाले 2C के साथ आ गया पैरेलल. 2C and 2C by 3 in parallel, 8C by 3. So between and 1, 8C by 3. Between 1 to 2, 2C. 4C by 5 आ रहा है. And between 2 and B it is 8C by 3. ये आ गया फाइनल सर्किट. हाँ बेटा कितना आया? Sir, 4C by 5. हाँ sir, 4C by 5 है. 4C by 5. 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, so that becomes 3 plus 4 plus 3. 10 by 8C or 4C by 5. इस सर्किट को हम वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री से सॉल्व नहीं कर सकते कि वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री का ना तो यहाँ पे जंक्शन था और ना ही यहाँ पे कोई कैपेसिटर लाइंग ऑन प्लेन ऑफ सिमेट्री. फिर से पिक्चर देख लो, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पूछो क्या है इसमें. We have done two different type of circuits. One is the perpendicular symmetry, vertical symmetry passing through the midpoint. Second is the plane of symmetry going parallel. Plane of symmetry going parallel to the battery. Right. Done. Yes sir. Yes, sir. Very good. Numbering method, folding method, more or less same है, but numbering is little safer. नंबर करके आप काउंट कर सकते हो कितने बीच में कैपेसिटर थे and how many capacitors. सर एक सेकंड पिछले स्लाइड पे जाना है, उसको चेक करना है. 1 upon C equivalent is 10 by 8C, so C Yes, sir. equivalent is 8C by 10, which is 4C by 5. सब 1 और 2 के बीच में सी नहीं था नॉर्मल, बस 2C कैसा आया? दो थे ना, ओह एक अच्छा ऊपर अच्छा. का C और एक नीचे का C. यस यस यस. देखिए दृष्टि क्लियर. Yes, sir. चाहे किसी का छोटा भाई.
उसी का बहुत छोटा सा वर्जन है. What will be CAB? Yes. What is the answer? एक सेकंड. सर 6C/7 आ रहा है. 6C/7? No. अरे, horizontal plane of symmetry, vertical plane of symmetry is of no use here because again there is no junction. There is a horizontal plane of symmetry. Horizontal plane of symmetry के ऊपर और नीचे जो भी पॉइंट्स है वो सेम पोटेंशियल पर. सर 2C/7 आएगा. 2C/7 7 सर 7. 2C/7 है ना. 2C/7 भी नहीं है. अब ये इसके अक्रॉस ही दोनों सेम पोटेंशियल पे 1 और 1 दोनों सेम पोटेंशियल पे थे. उसके बेसिक कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं होगा, इसको हटा दो. ये 2 और 2 सेम पोटेंशियल पे थे, इसको हटा दो. सर्किट बचा सिर्फ इतना सा. ऊपर के C इन सीरीज C/3, नीचे का C इन सीरीज that becomes C/3. C/3 in parallel that become 2C/3. अगर सपोज ये नहीं करना, नंबरिंग से करना है तो नंबरिंग से कर लेते हैं. नंबरिंग मेथड इज आल्सो सेम हियर. सर आंसर क्या है? 2C/3. यस सर. ओके. नंबर से कर लेते हैं. हमने नंबरिंग कर ली. अब हम एंड्स पे हमेशा वो नंबर लेते हैं जिनके बीच में हमें कैपेसिटेंस निकालना हो. A एंड B, 1 एंड 2. पहला कैपेसिटर था बिटवीन A और 1 के बीच में 2 कैपेसिटर, और 1 के बीच में 2 कैपेसिटर, एक ऊपर का और एक नीचे का. 1 और 1 के बीच में कैपेसिटर, इसका मतलब क्या हुआ, ये शॉर्ट सर्किट है. दिस 1 एंड 1 इज शॉर्ट सर्किटेड, उसको हम सर्किट में यूज नहीं करेंगे. 1 और 2 के बीच में भी 2 कैपेसिटर. 2 और 2 के बीच में कैपेसिटर which is again short circuited. These two capacitors between 1 and 1 and 2 and 2, these are connected between the same point, so those will be short circuited. Short circuited will not draw any current. इनको हम सर्किट से हटा सकते हैं. Right? अब ये क्या हुआ, C in series, C/2C, 2C, 2C. There will be 2C, 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 3 2C in series. So it become 2C/3.
दूसरा तरीका हमने यूज किया था बिकॉज these two capacitors are connected between the same point. These two are connected in the same point. इन दोनों को हटा देते हैं यहाँ से. Remove that from the circuit. ऊपर सी सीरीज में आ जाएंगे C/3. किसी मेथड से करो आंसर सेम आना चाहिए फिर मेथड इज करेक्ट. अंडरस्टूड. क्या की थी गलती आपने विदित? सर मैंने सर वो बीच वाले दोनों को इग्नोर नहीं करा था सर. ओके. मतलब फिर कॉन्सेप्चुअल एरर होगी बिकॉज दीज आर एट सेम पोटेंशियल. सेम पोटेंशियल है तो वो सर्किट में आइडेंटिफाई करना है आपको. वर्टिकल पिन ऑफ सिमेट्री लगानी है या हॉरिजॉन्टल पिन ऑफ सिमेट्री लगानी है. अकॉर्डिंगली वी विल रीड्रॉ द सर्किट. अगर कोई टर्मिनल किसी कैपेसिटर के दोनों. हाँ बेटा वॉइस क्लियर नहीं थी. किसी ने कुछ पूछा. सर वो मैंने दूसरे डिवाइस से किया था तो आपकी आवाज गलती से एको हो गई थी सर. सॉरी सर. अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. शॉर्ट सर्किट हुआ मतलब होता है दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम. दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट. अगर दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो गया तो V is 0 and V is 0 means it will not any draw any charge. अगर कोई चार्ज नहीं तो उसको हम सर्किट से हटा देते हैं. फाइन. नेक्स्ट इज ये पहला एग्जांपल था. फर्स्ट केस था प्लेन ऑफ सिमेट्री. उसमें हमने दो देखे. प्लेन ऑफ सिमेट्री के और भी केसेस हैं वो हम बाद में 3D सर्किट्स में देखेंगे. 3D सिमेट्री में एंड डायगोनल वीट स्टोन बेस्ड सिमेट्री. second special case, circuits having extra connecting wire. Circuit having extra connecting wires. तो ये थर्ड स्पेशल केस है. थर्ड मान सकते हो. यस. पहला था हॉरिजॉन्टल वेन ऑफ सिमेट्री. सेकंड वाज पहला था वर्टिकल. दूसरा था Vertical. हॉरिजॉन्टल. This is the first circuit. Plane of symmetry में first circuit having vertical plane of symmetry. Second it was horizontal plane of symmetry. Third is circuits having extra connecting wire. Usual से normal circuit में अगर बीच बीच में हम extra wire लगा देते हैं then circuit connection gets changed. Like suppose these 6 capacitors. वैसे तो ये सारे सीरीज में C, C2, C. Suppose this is between A and B. अब इसमें हमने कुछ वायर लगा दी एक्स्ट्रा. एक यहाँ से लेके इधर. Let's say because of these extra connecting wire this circuit behavior has changed. सर्किट का कनेक्शन अब हम इन सबको सीरीज में अज्यूम नहीं कर सकते बिकॉज बीच बीच में एक ब्रांचिंग भी आ गई. सो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना है. जिन भी पॉइंट्स को हम कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं. कनेक्टिंग वायर से अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं होता. रेजिस्टेंस नहीं होता तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो. पोटेंशियल डिफरेंस जीरो मींस will be zero. So the points connected by wire are always at same potential. जिसको हमने charge distribution between shell में भी use किया था. If two spheres connected by wires are touched together, they all come at same potential. Connected by wires are always at same potential. Same potential का मतलब है उनको हम circuit में hence they can be considered as same point for the circuit. Can be considered as same point in the circuit. जब हम नंबरिंग करेंगे तो उसको सेम पॉइंट ही ले लेंगे. सेम पॉइंट का मतलब लाइक हियर इट इज 1. द अदर साइड आल्सो शुड बी 1. दिस वाज B. तो जिससे कनेक्टेड है उसको भी हम B अज्यूम कर सकते हैं. राइट. द पॉइंट्स व्हिच आर कनेक्टेड टुगेदर
are always at same potential can be considered as same point. रीजन कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, रेजिस्टेंस जीरो का मतलब पोटेंशियल जीरो, और पोटेंशियल जीरो हो गया तो उन दोनों पॉइंट्स को हम सेम पोटेंशियल. नाउ redraw the circuit and find its equivalent capacitance. Exactly same method होंगे, exactly same method we will use for resistor circuit. So हम वहां पर इसको दोबारा नहीं करेंगे. The method concept is exactly same. इस सर्किट को दोबारा रिड्रॉ करना है. एंड पे हमेशा वो पॉइंट लेते हैं जिनके बीच में हमें इक्विवेलेंट निकालना हो. सो इट शुड बी ए एट वन टर्मिनल, बी एट अदर टर्मिनल, और बीच में बस एक वन एक्स्ट्रा है तो वन शुड बी टेकन इन बिटवीन. द फर्स्ट कैपेसिटर हियर इज बिटवीन ए एंड वन. एक कैपेसिटर लगा दिया बिटवीन ए एंड वन. देन C and 2C in series between 1 and B, C and 2C in series between 1 and B. B और 1 के बीच में, then there are 2C in series between B and 1. Between B and 1, then there are 2C in series. Between 1 and B, again there is 2C. So total number of capacitor count कर लो. Total 6 तो ऊपर थे, 6 नीचे भी है. Actual circuit is this. Now we have to find the equivalent capacitors using the normal series and parallel. ठीक है, मेथड समझना है. इफ मेथड इज नॉट क्लियर प्लीज आस्क. हमने जिन भी पॉइंट्स को वायर से कनेक्ट किया है, दे विल कम एट सेम पोटेंशियल. वी कैन कंसीडर देम एज सेम पोटेंशियल एंड they will be numbered as same point for the circuit. Then we redraw the circuit. सर एक बार फिर से बता दो. फिर से बताता हूँ. किसी भी सर्किट में अगर बीच में एक्स्ट्रा कनेक्टिंग वायर्स आ जाते हैं, एक्स्ट्रा कनेक्टिंग वायर्स को जिन पॉइंट्स के बीच में हम कनेक्ट करेंगे उन पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है. सो सेम पॉइंट्स पोटेंशियल्स और ऑलवेज इट सेम, उनको हम सेम पॉइंट पे अज्यूम कर सकते हैं, सेम पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं सर्किट में. सो वी विल कंसीडर दिस 1 and 1. ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड थे, जो बी के साथ, ये बी है. अदर साइड आल्सो इट विल बी बी ओनली. पहले सर्किट में जितने भी नोड या जंक्शन है उनकी हम नंबरिंग करेंगे, and then we will use those numbering to redraw the circuit. सर्किट रिड्रॉ करने के लिए एंड्स पे हमेशा पॉइंट लेते हैं वो जिनके बीच में निकालना हो, ए और बी, ए एंड बी एट द एंड्स. बाकी सब एक एक्स्ट्रा नंबर दिख रहा है 1 1 बीच. यहां तक समझ में आया प्रिंस? दिस स्टेप प्रिंस? यस सर. नाउ अब ये जो पहला कैपेसिटर था किस पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन ए एंड 1. So between A and 1 we draw this capacitor number 1. Then between 1 and B, C and 2C in series. So C and 2C in series, and that is connected between 1 and B. Then again third one is between B and 1, C and C in series, C and C in series, and that is it between B and 1. 1 और B के बीच में 2C, 1 और B के बीच में 2C. सर आंसर 19C/25. सर आ गया समझ. अब ये आएगा C C in series, C/2. This one is 2C/3 और नीचे 2C. So C के साथ सीरीज में C/2 plus 2C/3 plus 2C, which is 19C/6. okay. (19C/6), right? ये 19C/6 आ गया और इधर था C.
A और B के बीच में now 19C/6 and C in series. 19C/6 and C in series. इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. C1 C2 divided by C1 plus C2. या आप 1 upon equivalent करके यूज कर सकते हो. So this will become 19C/25. 19C/9. In any Yes, sir, normal 19. circuit, if there are some extra wires connected, those extra wires will connect those points at same potential. And when they are at same potential, that means we can give them as same number. They are behaving like same number, same point in the circuit, and then we redraw the circuit again. सर ऐसे वाला एक और करा सकते हो? बिल्कुल, एक नहीं बहुत सारे करेंगे. पहले ये समझो. ओके सर. यस सर. ये क्लियर? सर आप प्लीज एक और बार करा दो, ये वाला समझ नहीं आया. अच्छा, यही वाला कि दूसरा एग्जाम्पल? यही वाला. ओके, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा शायद. कोई और सा करा दो. कैपेसिटर्स में अगर बीच बीच में कहीं पे एक्स्ट्रा वायर्स लगे हों तो उनका पोटेंशियल सेम हो जाता है. उनको हम सर्किट में सेम पॉइंट, ये सपोज कोई सर्किट है, लेट्स से ईच वन इज सी, और इसमें एक वायर इधर लगा हुआ है, एक वायर यहाँ लगा हुआ है. ये वायर इधर लगा दिया हमने, एंड देयर इज वन मोर वायर लाइक दिस. ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा एग्जांपल ले लिया. अब इसमें जो पॉइंट्स आपस में वायर से कनेक्टेड है वो सेम पोटेंशियल पर है. ये पॉइंट ए पे है, दिस इज एट ए. आशुतोष, यस सर. ये दूसरी तरफ जिससे कनेक्टेड होगा वो भी ए हो जाएगा. यस सर. राइट, ये इधर बी है. ये जिससे कनेक्ट होगा दैट पॉइंट विल आल्सो बिकम बी. और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, इनको हम आपस में एक नया पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, 1 and 1. The point potential can be considered as same point for the circuit, and then we redraw the circuit. Right? यस सर. समझ आ रहा है? अब इस सर्किट को जब रिड्रॉ करना है तो ए और बी को लेंगे एंड्स पे और 1 को लेंगे बीच में. ये कैपेसिटर नंबर 1 नहीं, ये पहला कैपेसिटर किसके बीच में है? कौन से टर्मिनल्स के बीच में? बिटवीन विच पॉइंट्स? Sir, A and 1. आशुतोष, कौन से पॉइंट के बीच में है पहला कैपेसिटर? आशुतोष, सर ए एंड 1. ए एंड 1. ए एंड 1 कैपेसिटर सी. सेकेंड ब्रांच में 1 और ए के बीच में क्या है? ये 2C in series. यस सर. C in series, and that is also between 1 and A. ये आ गया सेकेंड वाला. थर्ड कैपेसिटर किसके बीच में है? दिस इज बिटवीन विच पॉइंट? ए बी. A B. So here is A, on the other side is B. Then this capacitor is between B1. B and 1. This is between 1 and B. 1 and B.
अब ये सर्किट सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाइड हो गया, इसको कैलकुलेट कर लो। सॉल्व दिस। यस, कितना आएगा? ये तो सिंपल हो गया अब। CNC C/2, C/2 in parallel with C, that becomes 3C/2। ऊपरले ब्रांच में पहले वाले का 3C/2, देन CNC that is 2C, और नीचे का एक C और आ गया, राइट? आ रहा है ये फ्रेंड्स? आशुतोष, सर 13 Is जो correct? ए C by और 7 वन के बीच में ऊपर का सी और सी सीरीज में, तो वो 3C/2 और प्लस सी भी तो करेंगे। तो या C सर और C जो सीरीज में आपने 3C/2 लिखा है वो 5C/2 नहीं होना चाहिए। क्यों? C और C सीरीज में कितना होता है? सर नहीं, उसके नीचे वो जो पैरेलल में लग रखा है सी। तभी तो C/2 प्लस C, तभी तो 3C/2 हुआ। सर आंसर ओके सर, 13C यस by सर, 7 है ना? गलती। 3C/2 C और 2C को सीरीज में करो, यस तो है 7 by 6C, मतलब 6C by 7। 6C by 6C/7 हाँ, फिर प्लस C, फिर वो आ गया 13C by 7। अपॉन 7 प्लस C2 करके। Yes, sir. 13C by 7. 3C/2 C और 2C, Sir, ये ये हो आ जाएगा जाएगा 3 by 7. C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, उससे आ जाएगा 6C/7, और फिर 6C/7 एंड C in parallel, that become 13C/7। करेक्ट? यस सर। राइट, एक और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। बेटा सबको समझ में आ रहा है? ना समझ में आया तो पूछ लेना फिर से, क्योंकि ये सर्किट ना दोबारा सर्किट में उसमें भी आएंगे रजिस्टर में, बस वहां केवल सीरीज पैरेलल में आपको अपोजिट करना होगा। मेथड विल बी एग्जैक्टली सेम, एक्स्ट्रा वायर कनेक्टेड बाय वायर्स एट सेम पोटेंशियल, उनको सेम नंबरिंग करके सर्किट ड्रॉ करते हैं। ओके, बोर्ड में भी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, बट बोर्ड में थोड़ा सिंपल वाले, ओनली व्हेन अल्टरनेट्स आर कनेक्टेड। Right, find the capacitance between A and B. Each capacitance is C.
Okay, try or should I give the hint? सर यहाँ पे सर ट्राइंग जस्ट 2 मिनट दे दो. नीचे कैपेसिटर होगा क्या जो ये नहीं सर नहीं जैसे लेफ्ट साइड सर तीन कैपेसिटर है राइट साइड. हाँ तो अच्छा क्या होगा, कितने भी लगाओ कोई जरूरी थोड़ी है. This is A. This point will also become as A because it's connected by wire. ये आपस में connected है, so point 1, and this will also become 1. बस सर्किट बना लो. A, B and 1. Take 3 terminals, 3 points. Done. सर 1 मिनट. सर आंसर 6C/5. सर ये जो आपने वर्टिकल बनाया ये वो नहीं हो जाएगा, बी तो है. हम्म. सर जो राइट वाला है सबसे, तो सेम पॉइंट तो राइट नहीं है वाला है. बी और बी. क्यों, ये तो बीच में आपने कैपेसिटर नीचे है ना. 1 लिखा वायर है. थोड़ी है. This is not a wire. The both side is capacitor. वायर से कनेक्टेड होते हैं अगर तो पॉइंट को बी एज्यूम करते हैं ना. इधर भी कैपेसिटर इधर भी कैपेसिटर है. बी तो और कोई पॉइंट पे होगा ही नहीं. A to 1 कितने कैपेसिटर आ गए? 3. 3 पहला हाँ. कैपेसिटर between A to 1. Second capacitor is between A to 1. Third capacitor is also between A to 1. C. 1 to B. 1 to B. 1 to B. 1 to B. और ये बीच में एक जो आ गया, दिस इज बिटवीन 1 to 1. ये हो गया शॉर्ट सर्किट. Connected between the same terminal will be short circuit. सर आंसर तो तब भी मेरा सेम ही आ रहा है, 6C/5. सर 3C और 2C सीरीज में है. 3C and 2C in parallel. गलत क्या, फिर भी आंसर सेम आ रहा है. क्या क्या भाई सर बताना. मेरे हिसाब से तो मैंने क्या करा, मैंने नंबरिंग में बी वाला जो नीचे वाला है राइट वाला, इसको बी ले लिया, तो ये वाला शॉर्ट सर्किट हो गया. वो तो और गलत है. वो तो बाई चांस है कि आपने सेम ले लिया तो एक शॉर्ट सर्किट हो गया. सर पर डिफरेंस क्या है फिर, मुझे समझ नहीं आया. तो उसको बी किस लॉजिक से लिया है? कैन नॉट बी बी ना. वो बी से कनेक्टेड ही नहीं है वायर से. ओह अच्छा वो हाँ, तो बाई यस चांस सर. इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि इन तीनों में एक शॉर्ट सर्किट और आपने ये वाला शॉर्ट सर्किट कर दिया. तो हमने 1 कैसे लिया इसको? इधर से कनेक्टेड है ना ये. All these 3 points are connected together अच्छा by हाँ, wire. यस सर. इसमें पोटेंशियल कोई पर होगा. कैपेसिटर नहीं है बीच में. ओके सर. C, 3C, C, 2C, 3C and 2C in series, that becomes 60/5. Okay. ऐसे ही एक और केस होता है जिसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट यूज करते हैं कनेक्टेड टुगेदर. कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट्स कनेक्टेड टुगेदर. केस नंबर 4. पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटर कहाँ बनता है? उनके बीच के गैप में. अगर 2 प्लेट है तो कैपेसिटर कितने बन रहे हैं? 1. Combination of parallel plates
connected together by wire. By connecting wire, obviously. Suppose there are some 6, 7 number of plates. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numbering भी कर लेते हैं. 1 is connected to 4 and 6, and that is A. One, 4 and 6 connected together to point A, and suppose 2 and 5 is connected together to point B. इसको P और Q ले लेते हैं. Each point is at, each plate has same area, capital A, and separation between them is D. Each plate area is capital A, and separation between any two consecutive plate is D. Find the equivalent capacitance. लॉजिक इसमें भी सेम है. जिनको हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ, दे आर एट सेम पोटेंशियल, दे आर एट सेम पोटेंशियल. राइट. इसमें यहाँ पे कैपेसिटर कितने, हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर देयर? सर ये है क्या, मतलब ये स्टैक ऑफ प्लेट्स है. 6 प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स, सबके बीच में डिस्टेंस दी है. यहाँ पे कैपेसिटर ये भी डी, दिस इज आल्सो डी, दिस इज आल्सो डी. 6 प्लेट्स आर देयर. जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए केवल 2 प्लेट बनाए थे, like that. Instead of 2 plates, now there are 6 parallel plates connected together. Stack of plates are taken. समझ गए? अब बैटरी को लगाएंगे P और Q के बीच में. अरेंजमेंट समझ गए? 6 पैरेलल प्लेट, सबका समझ एरिया गया. सेम है, सबके बीच की सेपरेशन डी है. यस सर. अब इसमें लॉजिक क्या है? 1, 4 and 6 are connected together, and which is same, which will be at one terminal. So 1, 4 and 6 is same as point P. दूसरी तरफ 2 and 5 are connected, and that is connected to point Q. Q is same as 2 and 5. बचा कौन? 3. 3 is left. 3 को बीच में रख लेते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 all points have to be marked first. कैपेसिटर बनता है 2 पैरेलल प्लेट के गैप में. सो ये फर्स्ट कैपेसिटर बन रहा है 1 और 2 के बीच के गैप में. सो वन साइड, एक तरफ वाले टर्मिनल का 1 और इधर 2. So this first gap is like a capacitor C connected here. Got it? यस सर. नहीं सर, Second capacitor is, समझ में नहीं आया ये बात. बेटा कौन बोल रहा है? सर विदित. विदित. हाँ. ये stack of plate है. Instead of two, we are using now 6 parallel plates, one after another, side by side. ठीक है. अब उस प्लेट्स में प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 4 और प्लेट नंबर 6 को कनेक्ट करके बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया है. दूसरी तरफ 2 और 4 को वायर्स, 2 और 5 को वायर से कनेक्ट करके फिर P से कनेक्ट किया बैटरी के दूसरे टर्मिनल से. बैटरी जो कनेक्ट होगी वहां पर ये ऐसे. दिस इज द सर्किट. अब इस सर्किट में एक नहीं बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं. कि कैपेसिटर्स कहाँ होता है? 2 पैरेलल प्लेट के बीच के गैप में, और उस गैप में एनर्जी स्टोर होती है. तो टोटल यहाँ 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज. हमें इनका कॉम्बिनेशन है कि वो कैसा है. समझ गए? अरेंजमेंट समझ गए विदित? यस सर. अब इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेपरेशन अलग
की सेपरेशन सेम नहीं होगी, एक की डी एक की 2d, सो अकॉर्डिंगली वी विल चेंज देयर वैल्यू। अभी इसमें ईच कैपेसिटेंस, हर एक के बीच में जो गैप है, ईच कैपेसिटेंस विल बी एप्सिलॉन नॉट a by d, जो हम लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। पहला 1 और 2 के बीच में, second is between 2 and 3, so the right side में 2, middle पे 3 है, this is the second capacitor position। third capacitor is between 3 and 4, third capacitor between 3 and 4, then 4 and 5, left side में 4 है, right 5 है, end पे 4 and 5, then 5 and 6, other 6 है। This is the actual circuit जब हम इसको circuit के form में change करें। The plates which are connected together are at same potential, so 1, 4, 6 इन तीनों का potential P के equal होगा, all points can be considered as P। 2 and 5 are connected together, 2 and 5 are connected together, they can be considered as Q, right? Understood? Yes, sir. अब इसकी फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला तो कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल C सर ये 3C पैरेलल में। मुझे एक डाउट है, बस एक डाउट है बोलो सर। 3 तो काउंट नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? इज कनेक्टिंग, 3 बीच में है। सर आपने बोला था ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं। 2 और 3 में एक साइड बन रहा है, 4 दूसरा प्लेट्स है, बिल्कुल सही। एक बार शुरुआत से बता दो फिर, थोड़ा बीच में हो गया। Plate number 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parallel plates, each of area A. Separation between two plates is D. Are placed parallel to each other. 1, 4, and 6 are connected to point P. 2 and 5 are connected together. Suppose that point is Q. हमें इसका कैपेसिटेंस बताना है। So 1, 4, 6 एक साथ connected थे, हमने उसको ले लिया एक same point as point 1, point 4, and point 6. Correct. On the other side, plate number 2 and plate number 5, यहाँ के 2 और 5, बीच में बच गया 3, 3 को मिडल में ले लेते हैं। पहला गैप 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, that gap has capacitor, so 1 on the left side था, इधर 1 और इधर था 2, तो पहला कैपेसिटर लगा लिया हमने 1 और 2 के बीच में। 2 to 3, ये 2, इधर 3, 2 और 3 के बीच में, फिर 3 to 4 के बीच में, 4 to 5, इधर 4 इधर 5, and then 5 to 6, 5 to 6, right? Aman? यस सर। C 3C पैरेलल में 3C हो गया, और ये बन गया C/2, सारे पैरेलल में C plus C/2, which is C/2 or 7/2 epsilon naught A by D. This is the equivalent formula, equivalent capacitance of this parallel plate combination. सर ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है? कौन सा फॉर्मूला? ये epsilon naught A by D। यस ये यहाँ पे C नहीं पता था ना, ये A और D के फॉर्म में लिखना होगा। फिर अच्छा कैपेसिटेंस वाज नॉट नोन, उनके एरिया पता थे। Understood? यस सर।
Yes, sir. Very nice. So next question आप करके दिखाओ. So suppose next is again Vidit, clear? There are 5 plates. 1, 2, 3, 4, 5, and 2 and 4 are connected together. 1 is connected to P. 3 and 5 is connected to Q. Find equivalent capacitance of this combination. Yes, done. Yes. So हम क्या करेंगे? One side only P is connected to 1 only. P is 1. On the other side Q is 3 and 5. अभी बीच में 2 and 4 are connected. So 2 and 4 will be taken in between. गैप में कैपेसिटर बनता है, पहला गैप 1 और 2 के बीच में, that is first capacitor. Second is between 2 and 3, that is second capacitor. Then 3 to 4, 3 to 4, third capacitor. And then 4 to 5, 4 to 5 is this one. इसमें 2 और 4 सिर्फ आपस में कनेक्टेड है, किसी और से कनेक्टेड नहीं है. It's not connected to any other point. Right? So C पैरेलल में 3C आ गया और उसके साथ एक C सीरीज में 3C/4. 3/4 epsilon naught A/D. Okay, we'll continue from here on Friday. Friday पुराने वाले potential की जितनी भी worksheets हैं before the capacitance part, all worksheet we will do and सर आप एक all ऐसा एक worksheet और we'll do and क्वेश्चन दे we'll दो. do next Yes. class या homework में दे देता हूँ. सर एक होमवर्क में दे दो ऐसे ही. हाँ
Right. Find the capacitance between. Okay. We'll discuss this next class. और पोटेंशियल के कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स होते हैं फॉर द जेई लेवल, वो एडवांस लेवल वो भी हम करेंगे. सेल्फ एनर्जी एंड ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.